تکلیف دی کہ الیکشن کمیشن کے بعد ہی آپ سے ملاقات ہو، کیونکہ معاملہ سارا الیکشن کمیشن کا ہی ہے۔ NA 75 ڈسکا میں نوشین افتخار صاحبہ جو یہاں میرے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے الیکشن لڑا اور الحمدللہ اس الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی، باوجود اس کے کہ پوری وفاقی اور صوبائی حکومت نے اپنا زور لگایا۔ صوبائی مشیر، صوبائی وزیر، وفاقی مشیر، وفاقی وزیر آخری دن تک، پولنگ کے آخری وقت تک حلقے کے چکر لگاتے رہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان مسلم لیگ نون کو، حق کو کامیاب کیا۔ اب الیکشن کا اعلان رکا ہوا ہے۔ ہمیں یہ توقع ہے کہ الیکشن کمیشن نے، جس نے الیکشن کا اعلان روکا ہے، کوئی انکوائری کرے گی، کوئی ہیئرنگ ہوگی، تاکہ یہ حقائق پاکستان کے سامنے آئیں۔ یہ ہیئرنگ جب بھی ہو، ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ ٹیلی وائزڈ ہو، لائیو ہو، کیمرے اندر موجود ہوں، تاکہ پاکستان کے عوام یہ دیکھ سکیں کہ 19 فروری کو ڈسکا میں کے الیکشن میں کیا ہوا۔ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ خواتین کو الیکشن لڑنا چاہیے، اور جب ایک خاتون نے الیکشن لڑا اور جیتا، جو حکومت پاکستان نے، حکومت پنجاب نے کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ نہ صرف آئین کی نفی ہے، قانون کی نفی ہے، بلکہ ان اخلاقی اور جمہوری اقدار کی نفی ہے جس پر جمہوریت چلتی ہے۔ یہ بدنصیبی ہے۔ الیکشن آج 21ویں صدی ہے، اور ہم نے پچھلے 73 سال میں کچھ نہیں سیکھا، آج بھی وہی کام کر رہے ہیں جو 1948 میں کیا کرتے تھے۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی۔ الیکشن عوام کا فیصلہ ہوتا ہے، عوام کی رائے کا اظہار ہوتا ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ اس پر ڈاکہ ڈال سکے۔ NA 75 میں ڈاکہ ڈالا گیا، مسلم لیگ نون کی فتح کو شکست میں تبدیل کرنے کی ایک بھونڈی سازش کی گئی۔ یہ بھی قدرت کے کام ہے کہ وہ سازش بے نقاب ہوئی، اور آج ارباب اقتدار منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ آج سارے گھروں میں بیٹھے ہیں اس خوف سے کہ جو نام ہیں وہ ایک دن انشاءاللہ سامنے آئیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہیئرنگ ہو وہ عوام کے سامنے ہو، ٹی وی کیمروں کے سامنے ہو۔ جو الیکشن کمیشن ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، جو ریکارڈ ہے وہ متنازع ہے، ریکارڈ میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کا اعلامیہ ہے۔ ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں جو انہی پریزائڈنگ افسروں نے جاری کیے تھے جب الیکشن کا کاؤنٹ ہو گیا تھا، اپنے اغوا ہونے سے پہلے جو انہوں نے جاری کیے تھے، سب ہمارے پاس موجود ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن کا پریزائڈنگ افسر جو ریکارڈ جاری کرے اس میں بعد رد و بدل ہو جائے۔ جو لوگ اغوا ہوئے، 20 پریزائڈنگ افسر مختلف علاقوں سے اغوا ہوئے، اور جب وہ برآمد ہوئے تو ایک ہی وقت میں برآمد ہوئے۔ وہ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، نہ ان کے بیان ملتے ہیں، نہ حقیقت کو چھپا سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس بات کی تہہ تک پہنچا جائے۔ الیکشن میں فتح تو مسلم لیگ نون نے حاصل کر لی ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سازش، یہ جمہوریت کے خلاف سازش، یہ الیکشن پہ ڈاکہ، یہ عوام کے حق پہ ڈاکہ، اس کے جو مجرم ہیں ان کو پاکستان کے عوام کے سامنے بے نقاب کرنا ہے۔ آج بدنصیبی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے کہنے کے باوجود صوبے کا چیف سیکرٹری آج بھی لاپتہ ہے۔
प्रिजाइडिंग अफसर तो मिल गए, लेकिन चीफ सेक्रेटरी लापता है, आईजी लापता है, कमिश्नर लापता है, डीसी लापता है, पुलिस के अफसरान लापता हैं। ये बदनसीबी है कि जिन लोगों के जिम्मे था कि तुमने इलेक्शन में धांधली नहीं होने देनी, तुमने तहफ़्फ़ुज़ देना है इलेक्शन कमीशन के अफसरान को, उम्मीदवारों को, अवाम को, वो आज खुद मुंह छुपाते फिरते हैं। इसलिए हमारी डिमांड है कि जो मामला हो टेलीवाइज्ड हो, कानून इसकी इजाजत देता है, और अवाम देखें कि 19 फरवरी को NA-75 के में क्या हुआ और किस तरह एक दफा फिर पाकिस्तान के अवाम को उनके जमहूरी हक से महरूम करने की कोशिश की गई। ये बड़ी बदनसीबी है। हम आज इलेक्शन का फैसला तो हो चुका है, हम आज उन मुजरिमों को, उस सोच को बेनकाब करना चाहते हैं जो पाकिस्तान में इलेक्शन की नफी करती रही और आज भी नफी करने की कोशिश की, और यही वो मामलात हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क और हर शोबे में जवाल पजीर है। ये बदनसीबी है। तो मैं अब मोहतरमा नौशीन साहब से गुजारिश करूंगा कि आप भी 2 लफ्ज़ फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ECP इसलिए भी पहुंचे हैं कि मैं एक रिक्वेस्ट कर सकूं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जो भी रिजल्ट आया है जिसमें PML की फतह है, मैं चाहती हूं कि वो रिजल्ट अनाउंस किया जाए, क्योंकि NA-75 के लोग जिन्होंने एक हुकूमत के खिलाफ, उनकी साजिशों के खिलाफ डट के मुकाबला किया और रोके जाने के बावजूद, असले की नुमाइश के बावजूद, फायरिंग के बावजूद अपने वोट कास्ट किए, वो अपना आईनी और जमहूरी हक चाहते हैं, वो इंसाफ चाहते हैं। लाइनों में लगे रहने के बावजूद 3-3, 4-4 घंटे लोगों ने वोट कास्ट करने की कोशिश की, और जिन लोगों ने वोट कास्ट किए हैं, मैं चाहती हूं कि ECP हमें इंसाफ दे और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे हमारा रिजल्ट अनाउंस किया जाए। हुकूमती जो इंतकामी साजिशें थी जिसमें पुलिस इन्वॉल्व रही, कैंपेन से लेके इलेक्शन डे तक, वो सब फुटेजेस भी हैं हमारे पास, वो सब हम लोगों ने भी वायरल की हुई हैं। तो मैं यही चाहती हूं कि हमें इंसाफ दिया जाए, और वो अब ECP के हाथ में है, क्योंकि एक हम जो सीट जो जीत चुके हैं उस पर अगर आइंदा भी ये प्रोपेगेंडे चाहते हैं या चाहते हैं, लेकिन इस हक सच की लड़ाई में अवाम ने हमारा बहुत साथ दिया है, और मेरी यही रिक्वेस्ट है बस कि इसका फैसला जो है वो सच पे इंशाल्लाह हमें ECP देगी। थैंक यू। मैडम ये बताइएगा कि क्या अगर इस मामले पर आगे चल के रीपोल की अगर बात की जाती है तो क्या वो आपको मंजूर होगा? देखिए जी, ये तो अब हम जब कल का जो भी मीटिंग होती है या जो भी हम डिसाइड करते हैं, मेरी पार्टी सीनियर्स और सब मिलके, वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जो भी होगा हम ऑब्वियसली उसको फिर एक्सेप्ट भी करेंगे और अपनी भी रिक्वेस्ट देंगे, क्योंकि ये सिर्फ अब 20 जो हैं वो पोलिंग स्टेशन उनकी बात नहीं रही है। जो पोलिंग स्टेशन 5-5, 4-4 घंटे बंद रहे, तो हम उसके लिए भी फाइट करें। तो आपका मुतालबा है एज अ कैंडिडेट कि पूरा जो है हल्के का रीपोल करवाया जाए, ना सिर्फ के इट्स नॉट डिसाइडेड, वी विल डिसाइड इट। थैंक यू। भाई साहब जी बताइए कि आज आप यहाँ आए, बात की इलेक्शन कमीशन जाएंगे, जो बातें सारी जहाँ मुतालबा आपने किया है कि इसकी लाइव की जाए। देखिए, मामला इलेक्शन कमीशन के पास है, इसका रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ने रोका हुआ है। अब वो जो हियरिंग करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, हम उसका हिस्सा बनेंगे, हकायक अवाम के सामने रखेंगे। हमारी सिर्फ डिमांड ये है कि वो हियरिंग या इंक्वायरी पाकिस्तान के अवाम के सामने हो। ये बातें छुपानी ही नहीं चाहिए, ये बातें अवाम के सामने होनी चाहिए ताकि अवाम को पता हो कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। में कहा जा रहा है कि धांधली हुई है और हुक्मरान जमात आप पर इल्जाम कर रही है कि आपने धांधली की है, और आज इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त भी दायर की है। इस बारे से क्या कहेंगे? आपने वाकई धांधली की है? चीफ सेक्रेटरी मेरा था, आईजी पुलिस मेरा था, कमिश्नर मेरा था, डीसी मेरा था, 20 रिटर्निंग अफसर मैंने उठाए, मैंने अपनी फतह को शिकस्त में तब्दील किया। ये जो जाहिल ये बातें करते हैं उनसे ये सवाल कर लें। भाई साहब, इलेक्शन कमीशन के काम से वो प्रेस रिलीज थी या जो अभी तक उनकी सरगर्मियां हैं, इनसे आप होता नहीं है? देखिए, अभी जो उन्होंने किया है, उन्होंने इलेक्शन का रिजल्ट रोका है। अब इसके बाद वो हकायक उनके सामने आएंगे, इंक्वायरी होगी, जो भी हुआ, कमीशन बने, जो भी हो, हियरिंग हो, हम उसका हिस्सा बनेंगे। लेकिन हम तो इंसाफ मांगते हैं,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन जीत चुकी है। ये तो धांधली करने वालों का वाहिद मकसद था कि उस जीत को शिकस्त में बदला जाए। तो यहां तो कोई लंबी चौड़ी बात की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन को पीएमएलएन की फतह का ऐलान करना चाहिए और उसके बाद जो हार जाते हैं वो जाएं फिर अदालतों में फिरें। आज सुप्रीम अब्बासी कोर्ट साहब, ओपन बैलेटिंग पे बात हो रही है। अब्बासी साहब, इलेक्शन कमीशन अगर जो भी फैसला करता है, रीपोल का करता है, इलेक्शन नतीजा जारी करने का फैसला करता है, क्या मुस्लिम लीग नून उसको एक्सेप्ट करेगी? देखिए, ये इम्तिहान हमारा नहीं है, इलेक्शन कमीशन का है। हमने तो पर्चा दे दिया है, अब उस पर नंबर सही लगे या नहीं लगे ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। हकायक बड़े वाजे हैं, 20 रिटर्निंग अफसर अगवा हुए हैं, तो बात खत्म हो जाती है वहीं पर। अगवा करने वाली हुकूमत है। आज सुप्रीम कोर्ट में ओपन बैलेटिंग की बात हो रही है और वहां पर रजा रब्बानी साहब ने दलाइल देते हुए बात की है कि जो काबिल शनाख्त जो बैलेट पेपर्स होंगे वो डीप स्टेट की पहुंच में होंगे और आइंदा जो इंतखाबात हैं उसमें डीप स्टेट सूबाई और कौमी असम्बली मेंबरान को ब्लैकमेल भी कर सकती है। तो उनकी जो राय है, क्या उनको आप सेकेंड करेंगे? ये मिले देखिए, उन्होंने राय का इजहार कर दिया है, हम भी अपनी राय का इजहार करेंगे। बात बड़ी सीधी है। इस मुल्क का एक आईन है, उसको पढ़ लें वो क्या कहता है। आईन के अलावा जिन लोगों ने आईन बनाया था उनकी नीयत क्या थी उसको भी देखा जाता है आईन को बदलते हुए। तीसरी बात यह है, दुनिया का मुरवजा निजाम देख लें। दुनिया में कोई मुल्क है जहां पर इलेक्शन ओपन होते हैं? बड़ी सीधी सी बात है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।